Namaste and good morning. Namaste and good morning. Sahitya Akademi's day-long All India Poetry Festival, organized to mark and celebrate the World Poetry Day. Shri Prayag Shuklaji, distinguished Hindi poet, will inaugurate the festival. The day-long festival is divided into 3 sessions, and including the inaugural one. At the outset, I request Shri Madhav Kaushikji, President, Sahitya Akademi, to kindly felicitate Shri Prayag Shuklaji. To begin with, I request Dr. K. Srinivas Rauji, Secretary, Sahitya Akademi, to please deliver welcome address. Thank you, Krishna. Sri Prayag Shuklaji, eminent Hindi poet and translator, Sri Madhav Kaushikji, President Sahitya Akademi, Professor Kumar Sharmaji, Vice President Sahitya Akademi, all the poets participating in this program, and friends. I am glad to welcome all of you for this edition of World Poetry Day celebration by Sahitya Akademi. Friends, I just would like to start by repeating the words of UNESCO on the purpose and objective of why we organize poetry reading on World Poetry Day. I quote, World Poetry Day is the occasion to honor poets, revive oral traditions of poetry recitals, promote the reading, writing and teaching of poetry, foster the convergence between poetry and other arts, unquote. Though Sahitya Akademi organizes poetry reading in all the 24 languages throughout the year, programs to revive oral traditions throughout the country, seminar on the relation between poetry and other art forms, especially literature, we organize World Poetry Day celebrations on 21st March 2023 in all our branches to honor poets in various languages. If one looks carefully, the tradition of reading and listening to poetry has been on decline all over the world, especially in the past 30 years or so. I am proud to say that we have been maintaining the tradition of poetry reading in all the languages recognized by Sahitya Akademi since inception. So that is practically for 70 years. Today the world is in a crisis and shared living in the future of humanity. If is poets of yore in India who realized this, and for over 2000 years we have had rich traditions of poetry with the universal vision. Out of such a vision came the Vedic dictum of Vasudeva Kutumbakam. Again, the deep reading of our poetic traditions would reveal that in ancient times the term Kavi
was used to denote seeds, and it is these seeds who saw the universality of humanity and composed such poems that reflect the universality. Very aptly, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji chose one earth, one family, one future, reflecting Vasudhaiva Kutumbakam. And in India, just concluded Festival of Letters 2023, also we organized a day-long All India Poets Meet on this theme. Poetry is integral up to humanity, and without poetry our minds will be barren, and it is poetry that decorates our thoughts, emotions and feelings. Poetry is for all and everyone can relate to poetry, whether one is an erudite person or illiterate. It is our pleasure and privilege to host so many poetry readings in all the languages, and we are humbled that hundreds of poets respond and accept our invitations to come and read poetry in our platforms. I can only say we are eternally grateful to all of you. I would like to conclude by quoting once again the UNESCO message, and this time it is on poetry as the vehicle for peace. I quote, "Practice throughout history, in every culture and on every continent, poetry speaks to our common humanity and our shared values, transforming the simplest of poems into a powerful catalyst for dialogue and peace." Unquote. With these few words, I am glad to invite all of you for this edition of World Poetry Day celebration featuring poetry by reading poets from 24 languages that are recognized by the Sahitya Akademi. Thank you. Many thanks, sir. Briefly and beautifully you pointed out the cultural significance of poetry, literary cultural milieu, as well as Sahitya Akademi's long tradition to celebrate the World Poetry Day. Thanks a lot. Your verse reminds me of Paul Verlaine's line, "Prose is like walking, poetry is like dancing." Thank you again. Now I invite Shri Madhav Kaushikji, President Sahitya Akademi, to deliver the presidential address. Madhav Kaushikji is an eminent Hindi writer and poet. He has more than 30 published books to his credit, including poetry collections, short story collections, criticism, children literature, translation and edited books. Some of his books and poems have been included in the curriculum at graduate and postgraduate level in different universities. He has written scripts and lyrics of the award-winning telefilm Hari Bhari Hariyali Dharti. He was the member of the governing council, Haryana Sahitya Akademi, and currently the chairman of Chandigarh Sahitya Akademi as well. He is the recipient of Shiromani Sahityakar Samman, Mahakavi Surdas Samman, Subramanya Bharati National Award of Kendriya Hindi Sansthan, Ajivan Sahitya Sadhana Samman by Haryana Sahitya Akademi, Babu Balamukund Gupta Samman, Hans Kavita Samman, All India Balraj Sahni Award, Millennium Award, and many more. I request Kaushikji to please deliver presidential address. आदरणीय प्रियाग शुक्ल जी, लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार, कवि, चिंतक, मैडम कमल शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष राव साहब और पूरे हिंदुस्तान से आए कवि मित्रों, वास्तव में भारतीय संस्कृति में तो कवि का बड़ा महत्व है। कवि रे मनीषी स्वयंभू परमभू, इसको तो प्रजापति का दर्जा दिया गया है। कवि समानांतर संसार की रचना करता है, ये सब मानते हैं। तो आज का दिन आप सभी के अभिनंदन का दिन है। साहित्य अकादमी की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं। जैसे उर्दू वाले कहते हैं कि लोह कलम और ज़्यादा शुभकामनाएं,
मित्रों, राव साहब ने जैसे बताया, दुनिया में सिर्फ कविता ऐसी चीज है, अगर संसार में कोई खूबसूरती बची हुई है तो कविता की वजह से बची। और कई बार तो लगता है कि जो सौंदर्य की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है, उसको कविता ने बनाया है और लोगों तक समझाया भी है, पहुंचाया भी। आप किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी की भी, प्रकृति से लेकर प्रेयसी तक, आपके पास सिवाय कविता के और कोई साधन नहीं। तो अकेली कविता है, लोग उसे म्यूजिक ऑफ सोल भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से। कवियों की प्रशंसा में, कविता की प्रशंसा में संभवतः इतना कुछ कहा गया है कि कई बार तो लगता है। हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि मित्र हुए हैं गोपाल दास नीरज, उनकी एक कविता की पंक्ति है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आप सब सौभाग्यवान हैं मित्रों। सच में अगर मानवता की किसी ने बात की है तो वो कवियों ने की है। दुनिया की जितनी सीमाएं, अकेला कवि है जो उसका अतिक्रमण करता है। गद्य 10 कदम जाके रुक जाती, कविता नहीं रुकती। ये जो ओरल ट्रेडिशन की राव साहब बात कर रहे थे, वो ओरल ट्रेडिशन ऐसी है जो सदियों तक चलती रहती है, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अब अमृत काल मना रहे हैं पूरे देश में। एक बहुत बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी से कुछ दिन पहले बात हुई, 90s में है वो। तो मैंने उनसे पूछा कि अंग्रेजों के जमाने में पुस्तकें बैन हो जाती थी तो आप क्या करते? कहते सोजे वतन बैन होता था, कविता तो बैन नहीं होती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कहता बच्चे बच्चे को याद था, वंदे मातरम कह के हम सूली पे चढ़ जाते थे, रंग दे बसंती चोला। कहता कविता को कोई क्या बैन करेगा? तो दुनिया के किसी भी नियंत्रण से आगे है कविता, कोई जंजीर उसे पाल नहीं सकती। कवि को भी कोई नहीं मान सकता, कोई रोक सकता। और अगर कोई विश्व नागरिक है तो वास्तव में कवि। एक कवि को और एक कमाल की चीज मिली है और वो ईश्वर ने दी है। दुनिया में कहीं न्याय होता है तो न्यायालय तो पता नहीं उसका संज्ञान कब लेते हैं, निर्णय कब देते हैं। कवि रात को अपनी टेबल पे बैठ के उस अन्याय के विरुद्ध अपना उसी समय निर्णय देते हैं। आप सब ये कर रहे हैं। ये आपको ईश्वर प्रदत्त ऐसी शक्ति है जिसने कवियों को दूसरी नागरिकों से बिल्कुल अलग किया हुआ है। एक तरह से आप स्पोक्समैन ऑफ कॉमन मैन भी है। आम आदमी का प्रवक्ता है तो कवि है। आम आदमी के दुख दर्द, उसकी आशा निराशा, सपने सब आपने अपनी कविताओं में लिखे। भाव में कांटा किसी और के चुभता है, आँख से आंसू आपके गिरते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। सबका दर्द उठाने वाला व्यक्ति इतना व्यथित होगा मन से, इतना व्यथित हो कि सबके कष्ट अपने ऊपर उठा के फिर भी वो लोक रंजन करता है, लोक कल्याण की बात करता है। कई बार तो लगता है कि सच्चा कवि वास्तव में विश्वाई होता है। आप सब विश्वाई इसलिए है कि समाज को अमृत बांट सकें और आप अमृत बांट भी रहे। बहुत सारी दुर्भावनाएं वेस्ट से जुड़ी। अक्सर जब हम पढ़ते थे तो एक लिखने के लिए भी, जब मैं एमए इंग्लिश में था, मुझे अभी याद एक टॉपिक आया, व्हेन साइंस प्रोग्रेसिव पोएट्री डिक्लाइन्स। लेकिन क्या पोएट्री डिक्लाइन हुई? विज्ञान जितना आगे गया, कविता उससे 10 कदम आगे चली गई। विज्ञान ने जो कुछ किया हमारी कल्पना को देख के किया। चांद पे पहुंचने की कविताएं दिनकर जैसे कवियों ने बहुत पहले लिख दी थी, आर्मस्ट्रॉन्ग तो बहुत में बाद में गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी ये जो कल्पना है, आपकी जो अपूर्वता है, आपकी जो मौलिकता है,
उसने संसार को रहने के लायक बनाया है। अगर दुनिया में कवि नहीं होते, कविता नहीं होती, तो ये दुनिया कितनी वीरान होती, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का दिन वैसे भाषण देने का तो दिन नहीं है, आपकी कविताएं सुनने का दिन है। मैं भी अपनी 2 पंक्तियां आ गया है। आप सब कवियों की तरफ से एक तरह से प्रकृति को, ईश्वर को प्रार्थना है कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत है। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत है। और आखिरी पंक्तियां देखिए, ये दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। ये सब कवियों का दावा है। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत। आंखें दे सपना सही सलामत दे। बहुत बहुत आभार। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thanks for your words, and especially for your beautiful poem, which was almost like an overture. Thanks a lot. Before I invite Shri Prayag Shuklaji for the inaugural address, I request President, Vice President, Secretary and Prayag Shuklaji to please release Sahitya Akademi's monograph in Hindi on Kedarnath Singh Ji, which is hot on the press and written by Harimohan Sharma ji. Now I request Prayag Shuklaji to inaugurate the festival with his words. Prayag Shuklaji is a distinguished poet, art critic and translator. He has more than 25 published books to his credit, including poetry collections, short story collections, novels, travelogues, essay collections, memoirs and criticism, besides 8 books of children literature. He has translated the works of many renowned national and international poets into Hindi. He edited a number of magazines into English and Hindi, which includes Rank Prasan of the National School of Drama and the one of Sangeet Natak Akademi as well. He served on the editorial board of different newspapers. He was part of the international writing program of University of Iowa, the United States of America, and is the recipient of Sahitya Akademi's Translation Prize, Delhi Akademi's Kruti Award, Rashtriya Sharad Joshi Samman, Dvijdev Samman, among others. I invite Shri Prayag Shuklaji. Thank you. कौशिक जी, सुमित जी, गाँव सचिव का यहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ कितनी बार हमने विश्व के तमाम देशों से आए हुए स्वागत किया। इसमें आप कह सकते हो कि सब तरंगे विश्व कविता की
बात को मैं खासतौर पर याद करता हूँ। और सबसे सुंदर बात कि ऐसी जगह पर विश्व कविता दिवस मना रहे हैं जहाँ सचमुच विभिन्न भाषाओं की, विभिन्न देशों की कवि आते रहे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो विश्व कविता का पद है, विश्व कविता, ऐसे तो हर कविता विश्व कविता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो लेकिन शायद आज मेरा आशय ये है कि विश्व कविता वो तब कहलाती है किसी देश में जाकर के उसका वहाँ अनुवाद होता है। जैसे हमारे यहाँ भी देखिए, तो whenever we translate something from other language, from other country, only then we say that this is word poetry. We are translating from word poetry. ये जो बात है, ये तो एक मुझे लिपि से ये भी याद आती है कि अनुवाद का कितना है। एक देश से दूसरे देश में कविता जाती है, वहाँ जाकर वो जो लोकल है, जो उनका अपना है, उसके बीच उसकी जगह करती है, वहाँ वो उसकी जगह बनाती है और एक बड़ी बिरादरी बनती है। तो विश्व कविता दिवस के अवसर पर मुझे इसकी भी याद आ रही है कि ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी संख्या हमारी बिरादरी बनी और वो कम्युनिटी ऑफ पोएट्स। इनसे ये जो है ये बड़ी सुंदर बात है। अभी माधव कौशिक जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा कि कवियों का क्या महत्व है, कविता का क्या महत्व हम जानते हैं। लेकिन ये जो जोड़ना है कवियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से विश्व का जोड़ना, उसी विश्व का जोड़ना। आज हिंदी की बात करूँ, other languages like Malayalam, like Marathi, like other languages, Indian languages, जिनमें आपको बहुत सारी कविताओं के अनुवाद मिलेंगे। और हिंदी में तो देखिए इस समय स्थिति ये है, पिछले कई दशकों से, कि जर्मन, रशियन, जापानी, चाइनीज, आप नाम लेते चले जाओ, कोरियाई और स्पेनी, कवियों के अनुवाद में, उनकी कविताओं के अनुवाद में, उनके बारे में बातें की है, उनकी जीवनी हमने पढ़ी है, उनको समझा है, उनको जाना है। आज सुबह मैंने एक कोर्स लिखी है अपने फेसबुक वॉल पर, तो आपको जो 5 के प्रसंग से जो यहाँ कवि रहे थे और जो यहाँ कलाकारों के, कवियों के मित्र बने, और वो किताब मेरे साहित्य अकादमी नहीं छापी। तो इस तरह के आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। तो एक किताब का मैंने नाम दिया, और हमारे सारे हिंदी के बड़े कवियों, देखिए इतनी सुंदर बात आज भी है, इसकी भी याद कर लेता हूँ। फिराज जी अग्रज, जिनसे बहुत कुछ सीखा समझा है, जिनके साथ बैठता था, उनकी याद करता हूँ। और इस मौसम में तो विशेष रूप से करता हूँ। उनकी कविता है, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी में। उसकी एक कविता पर मैंने पूरा एक लेख लिखा, वो तो अब देखिए इन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए, भारतीय भाषाओं की अंग्रेजी किए हैं, विश्व की तमाम कवियों के अनुवाद किए हैं। कुंवर नारायण जी का नाम लेता हूँ, रविंद्र सहाय का नाम लेता हूँ, विश्व खरे के राखी, मैं लेता जा सकता हूँ नाम, और उनकी सबकी किताब में उपलब्ध हैं। और एक बड़ी सुंदर चीज़ ये भी हुई हिंदी की दुनिया में कि वो किताब साहित्य अकादमी छापी, translation of various from various Latin countries now is available in Hindi and through Spanish, not through English, because this is a new trend. We must do that. So if we can get someone who knows the language like Spanish or German or Russian, and then they translate to my language, like Bhavan ji, I can go on naming. इसमें इतने नाम हैं जो भी छूटे जा रहे होंगे। ये जो भंडार बना है ये बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, दुनिया की जो कविताएं हैं उनको अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसका भी एक मतलब है। ये किसी और भाषा में जिसकी जो भाषा है
पढ़े तो उसे कितना अच्छा लगता है। और ये उन्होंने तो बंगाल को सरल बात है, since I know the Korean, so I can say that many translations of world poets available in Malayalam also. ये जो बात है भी बहुत सुंदर है। वैसे तो आप देखो, पास में मैं सोच रहा था बारिश लगा था कि पता नहीं पूरी दिखाई देती नहीं और इतना सुंदर ये आयोजन है। तो कालिदास की याद बराबर आती है मेघ को आषाढ़ प्रतिदिन से आप इन्हीं से देखिए, आपको की चीजें जो हैं इसकी बात अभी आप कर रहे हैं तो नीचे मनुष्य ये तो दो चीजें हैं कविता का विषय, समुद्री पृथ्वी सारी चीजें हैं। कविता की दुनिया में आज विश्व कविता से हमने जाना है कैसे दुनिया भर के कवि छोटी से छोटी चीज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, चींटी से लेकर हाथी को, हिरण को, उसकी गति को अपना करके चलते कैसे कैसे। और ये भी याद आती है मुझे, तो बहुत ज़्यादा इस बात की याद आती है कि अगर भारत के लिए हम कविता लिखते हैं तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं से चली आती है। जैसे आप देखो जो हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो बेटी भी पढ़ा, दूसरी कवियों को सीता को, आस्तानाथ को, पाटन साहब को, तो हमने क्या पाया कि भारत की जो उपस्थिति है उनके जीवन में वो क्या चीज, वो क्या रिश्ता है जिसके बिना उसकी कविता पूरी नहीं होती। उसका देश ऐसा है, उसका मौसम ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे मैंने ये भी पाया कि विश्व कविता जो है, इस वर्ल्ड पोएट्री ऑफ आवर्स, इट कनेक्ट्स अस विद द नेचर, with the plants, with the flora and fauna of the different countries. इसके बहाने हम समझते हैं कविता का क्या मूल्य है, क्या उसका एक उसका क्या रस है, उसका क्या आनंद है। हमारे पेड़ पौधे नहीं है और रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ से हमने रेत का दूसरा रूप देखा। फिर समुद्री पृथ्वी का ये जो रूप कविता के माध्यम से धीरे धीरे प्रकट हुआ। अब याद है देश को अपनी अपनी जलवायु, अपने फूल पौधे वृक्ष इनसे ही जानते हैं कि हम जानते रहे इनके माध्यम से। कालिदास का नाम लिया, रविन्द्रनाथ को अपने जीवनदास को लिखिए, भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े कवियों को देखिए, उन्होंने अपने यहाँ की नदियों, जंगलों, कमल ताल चाहते नहीं है। उसके बहाने हमने जाना है कि ये जो प्रकृति के उपादान, ये जो मनुष्य की स्थितियाँ हैं अलग अलग प्रदेशों में, देशों में, ये इतनी गहराई से हमको हमारा परिचय षष्ठी मात्र से करा, जो हमारी साधारण जीवन चर्या में रोज की जीवन चर्या में वो चल रही थी कविता सबको पास हो। और ये भी देखिए कितनी सुंदर बात हुई है, पहले तो ना नहीं था शायद कोई नोबेल पुरस्कार जिसको मिलता है या जिसको हमारे अपने यहाँ साहित्य के लिए अवार्ड मिलता है, तो भारतीय भाषाओं में कविता आना शुरू हुआ उस तरह की। और पुरस्कार किसी को मिलता है तो देश की तमाम भाषाओं पुरस्कार घोषित होते हैं। जिन्होंने पहले से कर रखी है वो कहते हैं कि मेरे पास एक विचार है अपनी भाषा में लेने के लिए, ये उसको याद दिलाते हैं, हम तो पहले ही कर चुके हैं। संसार बहुत बड़ा हो रहा है कविता का। And I really feel very happy, privileged, honored to be here this day, doing all this, and with you, all my poet friends, what a pleasure. तो आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ, अपने को भी बधाई देता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ। और तो एक बात है कि करते हुए विराम लूँगा, मैं भी कविता सुनाऊँगा क्योंकि थोड़ा ने मुझसे आग्रह किया था और मैं जानता हूँ कविता का दिन है, मैं कविता लिखता हूँ, मैं भी सुनाऊँगा। लेकिन मैं भी असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे परिचय में आप जानते हो कि मैं बहुत सारे अनुवाद मैंने किए, बहुत सारे किए,
तो आपके पास का नाम लिया, विदेशी कवियों के बहुत सारे अनुवाद किए हैं। तो वो शायद तो 400 रविन्द्रनाथ को किया है, ये भी 200-300 गीत किए हैं हिंदी में, छंद में किए हैं। और ये भी देखिए, जब छंद की बात है तो ये भी लगता है कि कविता का ये जो अनुवाद है, इसकी प्रेरणा भी हुए हैं। बहुत सुंदर बात की है, तमाम लोगों ने ये कोशिश की है जो मूल भाषाएं जानते हैं कि हम लगभग किसी देश की किसी भाषा की कविता को अपनी भाषा में उतारें। तो वो छंद में इमरे बंधा का नाम आपको शायद सुना हो, लोग मित्र हैं, हंगारी भाषा उनकी, हंगरी भी गया हूँ, उनके घर भी गया हूँ और वहाँ बहुत सारी बातें उनसे हुई थी। तो जब उन्होंने हम लोगों को आनंद घन का उन्होंने अनुवाद किया, छंद में किया, तो जब उन्होंने हमको अनुवाद किताब तो बाद में आई थी, कभी भारत आते रहे, तो उन्होंने जिस दिन मुझे आनंद घन का अनुवाद सुनाया, मैं तो चकित हो गया। ठीक वही छंद, बिल्कुल वही छंद, वही लय, वही मतलब दुनिया हंगारी वैसे द्वीप में हम लोगों ने भी किए हैं, अपनी भारतीय भाषाओं से बात करते हुए किए ही है। तो ये जो कविता को एक उतारना है, एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका जाना है, विशेष रूप से एक कविता का दूसरे देश में जाना है। फिर इसको दोहराता हूँ कि वही तो असली विश्व का दुख है। यहाँ मैं एक रात को या एक शाम को बैठा हुआ अपनी मेज पर पास्टरनाथ को पढ़ता हूँ, ये कम भी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद सुना रहा हूँ, मेरा नहीं वो बात सुना रहा हूँ, जो उनकी कविता को कभी मानी ही जाती है कि लाइफ इज नॉट एज समवन क्रॉसेस ए फील्ड। जीवन ऐसा नहीं कि आप एक मैदान को आपने पार कर लिया तो आपने जी लिया है, पार कर लिया, क्या बात। एक कविता को एक पंक्ति क्या दे जाती है। तो ये जो शुरू हुआ, ये जो यात्रा शुरू हुई, कालिदास की फिर याद करता हूँ, तो एक हिसाब से हमारे भारत के लिए पहले विश्व कवि हैं, और विश्व कवियों में से भी शायद वो पहले विश्व कवियों में से एक है जिनको सारी दुनिया में जाना। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि अगर विश्व कविता है, उसका अगर ये रूप है कि वो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है, तो उसका क्या रूप बनता है, वो विश्व कविता हो जाती है। वैसे विश्व कवि भी, विश्व कवि तो है, मतलब हमारे आधुनिक काल में आप देखिए तो रविन्द्रनाथ हो, पीएस एलियट हो, डब्ल्यू बेट्स हो, पास्टरनाथ हो, ये विश्व कवि है और फिर उनकी कविता विश्व कविता है। हमारे देश से तो किसी सुंदर परंपरा शुरू हुई, फिर बता लेता हूँ, कालिदास से रविन्द्रनाथ तक आपकी जीवनदास की कविताओं के अनुवाद पूरी दुनिया में हो गए, तमाम कितनी भाषाओं में हो चुके हैं। ये हमारे अपने इतने बड़े कवि हैं, सभी विश्व कवि। और तो मैं कह ही चुका हूँ कि कविता मात्र किसी भी भाषा की, मैथिली की हो, जनपदी भाषाओं की हो, अवधी की हो, भोजपुरी की हो, वो भी विश्व कविता है। उसका जो भी उसको अनुवाद होता है, अंग्रेजी में कोई करता है, स्पेन में कोई करता है, तो वो मैथिली की कविता में विश्व कविता बन जाता है। तो ये अनुवादों का सिलसिला चलता है। अनुवाद बहुत बड़ी चीज है, अनुवाद इस नाम में बहुत बड़ी चीज है। कविता का अनुवाद तो खास करके अनुवाद में ही मैं अपनी भाषा को जान पाता हूँ। I can know my language only through translation. Because when I write, whether it is poetry or prose, whatever words come to me, I use them. But while I'm translating something, I go to friends, I go to dictionaries, I go to my own memory of how this particular word or sentence is used or has been used in my language. तो कोई अंत ही नहीं इस प्रोसेस। विश्व कविता का एक देश से दूसरे देश में जाना विश्व कविताओं का कहना चाहिए। हमारे यहाँ
आज मैंने इसकी पोस्ट में याद की है, कुछ आखिरी बातें कह रहा हूँ आपसे, 2 मिनट में समाप्त करता हूँ कि अगेन ये 60-70 से हिंदी की बात कर रहा हूँ, सही बात काफ़ी भाषाओं में भी हुआ है, जहाँ कुछ कवि निकले, कुछ पत्रिकाएँ निकली, कुछ प्रकाशन निकले जिन्होंने अनुवाद को बढ़ावा दिया। साहित्य अकेडमी भी कहाँ से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर्स, जिनमें आप पाओगे कि अब तो लगभग विश्व के तमाम कवियों की चीज़ें आ चुकी हैं। They are available in English, they are available in English. तो ये जो अनुवाद का सिलसिला है, इसके बहाने कविता का आना है, ये चलता रहे। फिर से दोहराता हूँ और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कविता की जो ये सत्ता है, ताकत तो देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी बात कौशिक जी ने भी की, और फिर विश्वास के सहारे हम कभी हर हालत में चलते रहे कि इसकी एक अपनी दुनिया है, उसकी एक अपनी सत्ता है और इतनी बड़ी है कि आप जैसे मैंने पासवान के पंक्ति का उदाहरण दिया, एक पंक्ति आपको मिल जाती है और आप उसके सहारे पता नहीं क्या क्या दिन बिता लेते। इतने लोग हैं, नवनीता रियल सिंह के उन्होंने एक बार बताया था कि हाउ डिफिकल्ट है USA. She could manage with the poetry of Rabindra. ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे, आपको पता होंगे, मैं कोई नई बातें नहीं कह रहा, ये सब आप जानते हो, मैं खाली उनको अपने भीतर जगा रहा हूँ और आपके भीतर जगा रहा हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब फिर कविता तो सुनाऊंगा, लेकिन वही मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, ये रसगुल्ला यहाँ होगा तो मैं सब कुछ ले आया। अब आप लोग जो कहो, मैं रविंद्र सुना सकता हूँ, मैं अपनी पीछे सुना सकता हूँ, तो फिर मैं अपनी सुनाता हूँ, 2 कविताएँ सुनाता हूँ। एक तो 2 कविता जो मुझे याद रहती है और बहुत बार सुनाई है, तो उसको सुनाना अच्छा लगता है। मेरी कविता है व्यंजन पकाने की विधियाँ, व्यंजन डिशेस। और ये हमारे अग्रज कवि मित्र रणवीर साहब को समर्पित है, क्योंकि उनके साथ निर्माण नाम पत्र में मैंने 10 वर्ष काम किया। करुण जी ऊपर लिखता रहा, वो कविता सुनाऊंगा। फिर एक कविता आपको सुनाऊंगा आंधी, गद्य में। और गद्य में भी हम लोग मानते हैं कि ये तो आग्रह है आदमी की, इस कार्य के शायद विश्व कविता दिवस का ये एक थीम जैसी कि लेट द पोएट्री बी इन प्रोज आल्सो। तो व्यंजन पकाने की विधियाँ। व्यंजन कई हैं, स्वाद भी कई हैं ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही जोड़ता है। चाहे तो हम इसे रहस्य भी कहें, हाथों का जस वह तो होता है, उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है, वह दृश्य है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया। सामग्री वह तो पूरी को, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ वह भी कैसे जुटाएगी ये महत्वपूर्ण है, अंत तब यही होगा स्वाद का। कैसे जुटाएंगे सामग्री मन व्यंजन विधियाँ। और ये कविता सुनाकर नाम लूँगा आंधी। ये कविता भी छपी नहीं थी, इसलिए कई महीनों या वर्षों से मैं बहुत सारी चीज़ें उनके पास ही रखता हूँ, फिर ऐसे कहीं कोई सुनाता हूँ।
रोज के रास्ते में कभी कभी आती है आंधी, धूल के साथ पत्ते न जाने कहां कहां से उड़कर आने लगते हैं, फिर बिछ जाते हैं सड़क पर। बदल जाता है आकाश का रंग, एक आशंका सी भी तैर आती है, यह जानते हुए भी गुजर जाएगी आंधी। वाहन से चौकन्ने को थम थम कर चलते हैं, उनकी खिड़कियां बंद की जाने लगती हैं। जो रास्ते में होते हैं वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ गिरी हुई चीजें दिखने लगती हैं उन्हें। कोई डाली, टहनियाँ, कभी कभी पूरा पेड़ ही झुका हुआ, कभी कोई तार बिलग हुआ खंभे से। ये बताते हैं कि आंधी और आगे बढ़ गई है और अभी थमी नहीं है। जो रास्ते में होते हैं उन्हें मिलना ही पड़ता है आंधी से अधिक, उनकी तुलना में जो होते हैं घर में आंधी के समय। Thanks a lot, sir. Thanks for your poems and your inaugural address. The scope and span of your address was tremendous. You not only referred to Indian poets but the major foreign poets as well. You referred to Boris Pasternak, Octavio Paz, T.S. Eliot, W.B. Yeats and many more. Thanks a lot. Now we will invite the poets who are going to recite their poetry. First I invite Dr. Sejal Shah, Sejal Ben as I call her. Sejal Ben is a noted Gujarati poet and critic. She has written 3 books and edited more than 5 books, besides many published poems in different journals. Several of her poems have been translated into Hindi. She is an academician with more than 20 years of professional experience as a research scholar, working on different projects based on Mahatma Gandhi, Indian women depicted in Gujarati novel, Charles of Mumbai, etc. She is also editor of 2 literary journals. Noted Gujarati poet Dr. Sejal Shah. आप सभी को विश्व कविता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कौशिक जी और राष्ट्रीय प्रमुख जी बनाते कि उससे काफ़ी मोटिव भी और मतलब उत्साह भी आया कि बहुत सही बात हुई है। कविता एक उपासना और उसी उपासना की कुछ कृतियाँ आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। मैं अपनी 2 कविताएं हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी और लास्ट में एक कविता अपनी भाषा गुजराती में सुनाऊंगी। माँ ने कहा था घर होता है वहाँ दीवारें भी होती है, इसीलिए हम बिना चिंता सो पाते हैं। माँ ने कहा वैसा ही एक घर मैंने बनाया है। माँ ने कहा था वैसे ही चित्रों जैसा, किंतु माँ कहना भूल गए कि दीवार के साथ खिड़कियां भी होती है और दरवाजे भी होते हैं, जिसकी दोनों और एक कड़ी भी होती है। माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी ना, इसलिए, और मैंने जरा ज्यादा ही पढ़ लिया, इसलिए हम दोनों भूल गए दीवार की दोनों और कड़ी लगा। क्या बात है। दूसरी एक कविता थोड़ी लंबी है। चींटियां, मनकोड़ियां, कॉकरोचेस
आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सुनाई देता नहीं बाद में गाना पड़ेगा। तो आप माइक पे क्लोज होइएगा। आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है अभी आवाज? आप बेहतर होइए। कीड़ी चिड़िया मनकोड़ी कुछ बंदे बागे सारे सब कुछ मैंने साफ कर लिया। कविता लिखनी थी ना, वाह। अपनी बेस को साफ कर लिया। चमकती हुई एक कलम भी लेगी, उसमें नई रिफिल भी डाल दी और बेटे की किताब के कुछ बचे हुए पन्ने उसके ऊपर गूंथ लिए। साथ में गूंथ लिया अपना एक रुमाल और बना दी मैंने एक कविता पोथी। अब मैं, मेरी मेज, मेरी कविता पोथी और मेरी कलम बैठ गए फर्श पर। पानी का गिलास रख दिया, कुछ चित्र सामने खड़े रख दिए। कुछ ही क्षणों में कविता विस्फोट की क्षण, कुछ ही क्षणों में। अरे किंतु भीति लगे हुए चित्रों के पीछे ये अचानक उड़ती हुई तितली आकर बैठी घड़ी के ऊपर। घड़ी के ऊपर वो बैठी, उसको तो बैठना था वो समय के कांटे के ऊपर, किंतु घड़ी की दीवार उसे बार बार बीच आ रही थी। उसे नहीं पता था ये घड़ी कल ही मैंने दुरुस्त करवाई थी समय के साथ चलने के लिए। मैंने सोचा इसी घड़ी से मैं अपनी कविता के कुछ अक्षर खींच लूंगी, समय के पट पे अपनी एक कविता लिख लूंगी। तो क्यों इतनी रुकी हुई है आज घड़ी? तेरा टिक टिक आवाज मुझे अभी भी क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? फिर से अटक गया ये सेकंड का कांटा। कल भी तो मैंने बदले थे सारे से समय के साथ चलने के लिए। मुझे फिर से देखना पड़ेगा इन समय के कांटों को, चश्मा पहनकर जरा करीब से। टेबल पे चढ़ती मैंने घड़ी को ऊपर नीचे किया और मुझे फिर से आवाज आई समय की। मिली वही तितली मुझे कल जो मेरे रसोई घर से हॉल की ओर उड़ी थी और घड़ी में छिपकर बैठी थी। उसकी पंख उसमें घुस गए थे। बहुत गुड़गुड़ कर रही थी ना वो। 20 गई बेचारी नादा। घंटों मिनटों सेकंड के इस युद्ध के बीच कौन समझाए उसे ये समय है, इसे रोक नहीं सकते, इसको पार नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। जो कुछ वर्णमाला सिखाई गई है उसको भूलकर उसको हम सिर्फ लिख सकते हैं। मेरी तितली ये नहीं समझ पाई, उड़ रही है कब से लगातार। एक छोटी सी कविता गुजराती में। ईंट मतलब ब्रिक्स। एक ईंट मूको जो दीवार होती है ना उसके ऊपर, कुछ लोग गुजराती में पढ़ते हैं इसलिए थोड़ी सी बात करेंगे। एक ब्रिक बहुत सारी रखते हैं और उसके बाद ही वो दीवार बनती है। एक ईंट मूको અને એક ઈંટ ચૂકો આ દિવાલને જરાક તો પોકળ રહેવા દો। આ દિવાલમાં જરાક તો બારી જેવું થવા દો। સજ્જડ સલામતીની આદત ના આપો। આ દિવાલને જરાક તો પોકળ રહેવા દો। દિવાલ અંદરથી એ તૂટે ને દિવાલ બહારથી એ તૂટે। દિવાલ એના દિવાલપણાથી એ તૂટે। અહીંના આકાશને જરાક તો ખુલ્લું પડવા દો। રહેવા દો थोड़ा आक्रमणों अवकाश। दीवाल में જરાક પોકળ રહેવા દો। અંકિત ચહેરાઓ દિવાલ સાથે વિખરાઈ જવા દો। આ નકશાઓની ભાર આ દિવાલને ફરી કોરી કર પૂરવા દો। વિખરાવી દો આ એક સરખી ઈંટોની ભાર અને દિવાલને ખંડિત થવા દો। ફાટ પડવા દો, ચોસલા પડવા દો, વાકોરું પડવા દો। દિવાલને પોકળ રહેવા દો। सलामती में थैंक यू। Thank you, Sahitya. I invite now
Dr. Suman Keshri. ये बात कर Dr. Suman Keshri ji is an eminent Hindi poet. She has 5 collections of poems besides the play Gandhari. She co-edited a book on Armenian genocide, Armeniai Jansamhar, Ottoman Samrajya Ka Kalank. She also edited the Hindi bestseller JNU Mein Namvar Singh. Her book Mona Lisa Ki Aankhein has been translated in Marathi and Rajasthan. She is working on another play on a very important woman character from the Mahabharata. I invite Dr. Suman Keshri. बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं साहित्य अकादमी को इस महत्वपूर्ण दिन में विश्व कविता दिवस के दिन में बुलाने के लिए कुछ कविताएं सामने रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपनी कुछ कविताएं मैं सुनाऊंगी और अपने नए संकलन जो महाभारत की स्त्रियों पर है निमित्त नहीं, उसकी भी कुछ कविताएं। सबसे पहले मैं मोनालिसा की आंखें, इस कविता के लगभग 20 ट्रांसलेशन हुए हैं भाषाओं में, 20 भाषाओं में, उसको मैं सुनाती हूँ और इसका शीर्षक है उसके मन में उतरना। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था, सीलन भरी अंधेरी सुरंग। उसने बड़े निर्विकार ढंग से अंग से वस्त्र हटा सलाखों के तार दिखाए, वैसे ही जैसे कोई किसी अनजान चित्रकार के चित्र दिखाता है बयान करते। एक दिन दाल में नमक डालना भूल गए, उस दिन के निशान है। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी आंखों की थी, उस दिन की निशान ये माने। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में। सब निशान दिखा, वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए हो किसी की हार की। स्तब्ध देख, मुझे स्तब्ध देख उसने थोड़े से छुआ। जानती हो बेबस की जीत आंख की कोर में बने बांध में होती है, बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक में सिझा के ये मुस्कान लगाई। तब मैंने जाना कि उसके मन में उतरना मानो किसी गहरे कुएं में उतरना था, जिसके तल में मीठा जल भरा। मेरी अगली कविता है, इसका शीर्षक है रेगिस्तान की तपती रेत पर। रेगिस्तान की तपती रेत पर अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रखकर हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना दिया। मेरी तीसरी कविता में प्यारे इसका शीर्षक है और इसकी कविता में दुर्शला। ये जो कौरवों की बहन थी, की बिटिया, उसका नाम, उसके नाम से कविता है। मैंने इस किताब में कोशिश की कुछ ऐसी कविताएं जिनके बारे में कम कहा जाता है।
इस कविता का शीर्षक है प्यारा। वह दुर्शला ही थी जो सचमुच बहुत लाड करती थी भी। सब भाइयों में प्यारा भी कंधे पर बहन को बिठा ढेरों फल ऊपर लगी डालियों से फूल तुड़वा देता था पल भर। भीम के कांधे पर बैठे दुर्शला अक्सर हाथी पर बैठी होने की कल्पना करते थे। खूब खिलखिलाती हंसती गाती इतनी ऊंची हो जाती थी दुर्शला भीम के कांधे पर बैठी। आज रणभूमि में जयद्रथ की मृत देख देख दुर्शला की आंख खोजती है उन्हीं कांधों को जिन पर सिर धर वह बचा सके खुद को लहू के दलदल में। युद्ध भूमि में सामने पड़ा भीम का शत विक्षत लोहे का पुतला मुस्कुरा रहा है मन मन। तो आप लोगों को पता ही है कि दुर्योधन को मारने के बाद धृतराष्ट्र ने जब बुलाया भीम से मिलने के लिए तो कृष्ण ने भीम को नहीं भीम के पुतले को भेज दिया था और जिसको मतलब धृतराष्ट्र ने तोड़ दिया पुतला मुस्कुरा रहा है भीम। और एक कविता है सावित्री पर एक कविता मैंने लिखी है और इसका शीर्षक है सावित्र कहलाएंगे भी। सावित्र यानी सावित्र कहलाएंगे। सुनो सावित्री, वह जो वीर को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती। ये यमराज सावित्री से कह रहे हैं, वो इतने प्रभाव से। सुनो सावित्री, वह जो वीर को प्रदीप्त कर धारण करती है संतान को, संतान उसी की होती है। अनिंदिते, पृथ्वी से यमलोक तक की ऐसी यात्रा अकल्पनीय रही सदा मेरे लिए। मेरी छाया उसे कांपता प्राण मृत्यु से पहले ही प्राण त्याग देता है। कौन कह पाता है 7 कदम साथ चलकर मित्र हुए हम, ये व्यवस्था। कौन कह पाता है 7 कदम साथ चल के मित्र हुए हम, ये व्यवस्था। रात के घोर अंधकार में रात के घोर अंधकार को चीरती सूर्य की पहली किरण सी ये कल्याणी फुल नंदिनी। तारोगे तुम पति और पिता के कुलों को, अवश्य तुम्हारे ही नाम से जानेगा तुम्हारी संतानों को, सावित्र कहलाएगा। मैंने इसमें जो पढ़ाया तो मेरे एमबीए की क्लास में लड़का था जिसका नाम देवेंद्र सावित्र। मैं तो बकायदा एक सावित्र से मिली और अब एक अंतिम कविता उस तथागत को याद। मैंने तथागत से पूछा, क्या तुमने कल को देखा? मैंने तथागत से पूछा, क्या तुमने कल को देखा है? एक हल्की स्मित मौनी, मैंने तो बस कल ही को देखा है। कल ही। Thank you, Dr. Suman Keshaji, for these beautiful poems. It was indeed a classic attempt to reinvent the mythological characters and the philosophical undercurrents, particularly in the last poem, Tathagat. Thanks a lot. Now I invite Dr. Shefalika Vermaji, eminent Maithili poet and writer. She has around 20 published books
to her credit, including poetry collections, short story collections, novels, and translated works. The English translation of her poem, My Village, has been included in the syllabus of board examination of the United Kingdom. She is associated with many literary, academic, and social organizations and served as municipal commissioner, Saharsa municipality for 10 years. She is the recipient of many prestigious awards and honors, including Sahitya Akademi Award, First World Women Award, Mithila Vibhuti, National Lifetime Women Excellence Award, Mahakavi Baidyanath Mishra Yatri Chetana Puraskar, and many more. She retired as head Department of Hindi, SNS RKS College, Saharsa, Bihar. Dr. Sahitya ji. आदरणीय माधव जी, कुमुद जी, श्रीनिवास जी, और हमारे मुख्य अतिथि प्रियांक जी, साहित्य अकेडमी परिवार और जितने हमारे कवि कवित्री आज आए हुए हैं और जो श्रोता वर्ग है, सबको मेरा अशेष अशेष धन्यवाद। आज विश्व कविता दिवस है, सारे विश्व को समेटे हुए है। मैं आई हूँ सीता की नगरी से। राम की नगरी तो सब जान गए हैं, लेकिन सीता सब दिन से वैसे ही रही जैसी सीता थी, आज भी वैसे ही निर्वासित है, नजर में नहीं है। तो फिर मैं चाहती हूँ तो पहले मैं अपनी भाषा, क्योंकि मातृभाषा मातृभूमि, इससे बढ़कर के यही मेरी जिंदगी है, तो इसलिए पहले मैं अपनी भाषा की, और मैं जानती हूँ कविता किसी भी भाषा में हो, लेकिन ये हृदय की भाषा होती है, हृदय हृदय को स्पंदित करता है, शब्द समझे या नहीं समझे। कविता शीर्षक थी कियक मोरायल एज। शहीदक खून सँ देश एखन धरि नहायल अछि, की देख की पैब मानव एना कियक बोरायल अछि, की देख की पैब मानव एना कियक बोरायल अछि। कतौ भागि रहल जन समूह प्रवाहक आवेग में, कतौ रहल मनु संतान श्रद्धा वै संवेग में, कतौ गेल संस्कार हमर भारत माता लेल अभिमान हमर, भारत माता लेल अभिमान हमर। कते संस्कृति ललाम लुकायल अछि, कते संस्कृति ललाम लुकायल अछि, की देख की पैब मानव एना कियक बोरायल अछि। धरती पर टगरैत पारासन, धरती पर टगरैत पारासन, अस्थिर मानव सदिखन, अस्थिर मानव मन सदिखन, कोनो बाट घाट कोनो राह हाट, कोनो बाट घाट कोनो राह हाट। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्चक होय वो सारा, की प्यारी की रिक्शा की कार की स्कूटर, तरह के सवारी पर भगत उजैया झुका मानो खेत छिड़ियायल अछि। उजैया कहते हैं जब हम लोग बाढ़ आती है देखे कोसी में, तो सारी मछलियाँ उजैया की तरह सड़क पर आ जाती है, उसको उजैया कहते हैं, मछलियाँ आ गई। तो उसी तरह किस तरह से ये लोग इतने की प्यारे की रिक्शा की कार की स्कूटर, तरह के सवारी पर भगे उजैया झुका मानव खेत छिड़ियायल अछि। भूत भविष्य चिंता नहीं, वर्तमानों से संतुष्ट नहीं, भूत भविष्य चिंता नहीं, वर्तमानों से संतुष्ट नहीं। भाग रहल जन प्रवाह कखनो प्रकृति से खेल रहल, भाग रहल जन प्रवाह कखनो प्रकृति से खेल रहल, कखनो आनक घर पुजारि रहल, कखनो आनक घर पुजारि रहल। किएक सभक मन अपना अपना ले ओनायल अछि, किएक सभक मन अपना अपना ले ओनायल अछि। कखनो पाषाण के चीरी कखनो पाषाण के चीर सौंसे विश्व आय प्रकृति के नोछारैत अछि, सौंसे विश्व आय प्रकृति के नोछारैत अछि।
पर्यावरण के नाम पर कौन खेल खिलाए देश, पर्यावरण के नाम पर कौन खेल खिलाए देश, बहुमत संग दुनो जना पिसाई देश, बहुमत संग दुनो जना पिसाई देश। आत्मा बदल विचार बदल बैठ गेल जाइत दल में मानवता बैठ गेल मिथ्या अभिमानक छल में। नहीं रह जाए इसकी शेष इत, नहीं रह जाए इसकी शेष इत, अपन भाग्य गाया लेश, अपन कर्म खेत में अपन भाग्य गाया लेश। की पर मानव इना केर पुराया देश, मानव इना केर पुराया देश। दूसरी में हिंदी कविता दो शब्द, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज। दो शब्द एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज। अंग्रेजी के ये दो शब्द बड़ी ही मायने रखते हैं, अंग्रेजी के ये दो शब्द बड़े ही मायने रखते, पर औरत की जिंदगी को बेमानी बना जाते हैं, पर औरत की जिंदगी को बेमानी बना जाते। जन्म के बाद से माता पिता के हिसाब से, जन्म के बाद से माता पिता के हिसाब से ये दोनों शब्द काम देते, ये दोनों शब्द काम देते। युवा होने पर भाई बहनों के साथ, युवा होने पर भाई बहनों के साथ, शादी हुई नहीं कि पति के साथ, शादी हुई नहीं कि पति के साथ, ये दोनों शब्द साकार हो जाते हैं, ये दोनों शब्द साकार हो जाते हैं। फिर ससुराल वालों के साथ दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज, दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं। एक ही सिक्का के दो पहलू लगते हैं। तुर्रा तो यह है, तुर्रा तो यह है अपने बच्चों के साथ, उनके पति पत्नी के साथ, उनकी स्थिति परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करना, उनकी आदतों के साथ एडजस्ट करना, उनकी आदतों के साथ कंप्रोमाइज करना, उनकी आदतों के साथ। और मत भी कहती है जिंदगी में एडजस्ट करो, लोगों में कंप्रोमाइज करो, जिंदगी से एडजस्ट करो, लोगों से कंप्रोमाइज करो। जो नहीं कर पाती है, जो नहीं कर पाती, अच्छी नहीं कहलाती है, अच्छी नहीं कहलाती है। किंतु रॉकेट की गति से भागता जमाना, किंतु रॉकेट की गति से भागता जमाना न तो आकाश पर पहुंच पाता है, न जमीन पर लौट पाता है। शंकु की तरह अथर में अकड़ में लटका जमाना। वे अंग्रेजी फटाफट बोलेंगे, वे अंग्रेजी फटाफट बोलेंगे, किंतु एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज का अर्थ नहीं समझेंगे, दोनों का अर्थ नहीं समझे। आखिर क्या कहाँ रही है ये पीढ़ी, आखिर क्या कहाँ रही है ये पीढ़ी। ये पुरुष कहलाने वाले तत्व, ये पुरुष कहलाने वाले तत्व कहाँ चले जाते हैं। केवल औरतें ही औरतें, अच्छी भी बुरी भी, केवल औरतें ही औरतें, अच्छी भी बुरी भी। एडजस्ट और कंप्रोमाइज का पर अर्थ क्या ये पुरुष कहलाने वाले तत्व नहीं समझते हैं। मन गहरे अवसाद के समंदर में डूब जाता है, मन गहरे अवसाद के समंदर में डूब जाता है। पल भर में ही समय कितना बदल जाता है, पल भर में ही समय कितना बदल जाता है। एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज। और एक छोटी सी कविता, ये कविता इंग्लिश में है, छोटी सी है लेकिन मेरी जिंदगी है। कहा जाता है जो whole world is divided into two groups, either in love or in hatred. I am in love, no doubt. I don't know who is in love and who is in hate, but only love. Sometimes I feel a deep loneliness. Sometimes I feel a deep loneliness within me. No light surrounding me, no light surrounding me. No sun, no moon, no moon, even no star. I want to sleep in a deep slumber. I want to sleep in a deep slumber, but sleepless nights, restless days became my life.
but sleepless nights, restless days became my life. Like an open book, an open book, there should be the eyes to read. There should be the eyes to read, the heart to understand. The open book, my life is like open book, but there should be heart to understand, there should be eyes to read it. Nothing is sacred. Nothing is sacred. I am nothing but a love. I am nothing but a love. Only love and love. Someone who doesn't question your love. Someone who doesn't question your love. Someone who takes for granted that you love them. It's really comfortable. So neither demand an explanation. Nor give an explanation. Live happily, live lovely, live in love. Thank you. I live up only love. No blood in my heart, there is only love and love. आप कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे पास आपके लिए प्यार छोड़ के कुछ भी नहीं है. Thank you, Dr. Shefali Kali. Now we invite Savitri Rajivanji, noted Malayalam poet and fiction writer. Sahitya Rajivanji has around 10 published books to her credit, including poetry collections, short stories collection, and translated works. Her works have been anthologized in many Indian and foreign languages. She has participated and presented her work in many national and international literary meets like Shamrock Festival of Women Poets, Munich, Qinghai Tent Forum, China, Bumper Literary Festival, Kerala, and many more. She is the recipient of Kerala Sahitya Akademi Award, Kamala Suraya Award, Fellowship of Ministry of HRD, and Udaya Bharati National Award. Savitri Rajivanji. Respected Mr. Srinivasa Rao, President Mothers, Kaushikji, dear poet Priya Shuklaji, and everybody present here. And thank you, Sahitya Akademi, for inviting for this great opportunity to be here with all of you. And thank you. Yeah. I read this not 2 big points, but still the one in Malayalam and then the translation of the English translation. The first one, Amme Kulipikimo. As you bathe your mother, this is the title of the poem. അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന പോലെ കരുതൽ വേണം. ഉടൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതരുത്. ഇളം ചൂടായിരിക്കണം വെള്ളത്തിന്. കാലം നേർപ്പിച്ച ആ ഉടൽ കഠിന മണങ്ങൾ പരത്തുന്ന സോപ്പുലായനി കൊണ്ട് പതയ്ക്കരുത്. കണ്ണുകൾ നീട്ടരുത്. ഒരിക്കൽ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ചൊരുക്കിയ അമ്മയുടെ കൈകളിൽ അന്നു നീ കിലുക്കി കളിച്ച വളകൾ കാണില്ല. അവയുടെ ചിരിയൊച്ചയോ നിന്റെ ഇളം കടിയേറ്റ പഴയ മോതിരം ആ വിരലിൽ നിന്ന് എന്നെ വീണുപോയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൈകളിലുണ്ട് ചുളിവിൻ്റെ എണ്ണമില്ല
ചിന്നി ചിന്തിയ ആ ചുളിവുകൾ നിവർന്നു തുടങ്ങി. അമ്മ പതുക്കെ കൈകൾ നീട്ടി നിന്നെ വീണ്ടും കുളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. എണ്ണയിലും താളിയിലും മുങ്ങി നീ ഒളിച്ച് സ്ഫുടമായി തെളിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ നിനക്കു തന്ന ഉമ്മകളിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് പകരം നൽകുക. അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന പോലെ. English translation. As you pay to You had some movie also, I believe. English you had done something. You had that? I don't have translation of these words actually. Yes. Those are the old ones. These are some of the new ones. As you bathe your mother, be mindful as with a child. Let the body not slip from your hands. Let the water be mildly warm. Do not lather that body softened by time with the heady fragrance of soaps. Nor let the eyes hurt on the arms which bathed and beautified you. You won't find the bangles you played with, nor will you hear their tinkling laugh. That old ring which bore your tender bites will have slipped off her finger long, long ago. But now, on mother's arms, countless pleased bangles of wrinkles shine with remembrance. 70 or 7,000 colors on them. Don't trouble to count. Just close your eyes, touch gently, caress that tender body, soft, smooth in water's mild, warm flow. Then those wrinkles, memory filled, will unfold. Mother will slowly stretch her arms and bathe you again. Steeped in oil and cleansing herbs, you will keep emerging, washed, limpid, clean. Then, in return, give your mother one of the kisses she gave you, as you bathe your mother as a child. The second one is Karupur, black. This poem is about a tribute to George Floyd, who was murdered in Karupur. സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ സുന്ദരമല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവിതമെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോൾ അയാൾ അറിയുന്നു. ആ പിടച്ചിലിൽ അയാൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ ശരീരം നുറുങ്ങുന്നു, എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് നിറയുന്നു, എൻ്റെ വായിൽ ചോര, എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, എനിക്ക് ശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അയാളുടെ കറുത്ത ഉടൽ കാരിരുമ്പ് കൊണ്ട് തീർത്തതാണെന്ന്. നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അയാളുടെ കറുത്ത ഉടലിലെ എല്ലുകൾ, നാടി ഞരമ്പുകൾ, കുടൽമാലകൾ, അവ അനാട്ടമി ക്ലാസ്സിലെ ഡാവിഞ്ചിയുടെ കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകത്തിലോ കണ്ടും കേട്ടും വരച്ചും പഠിച്ച എല്ലുകളുടെയും ചർപ്പുകളുടെയും മാംസവും ചോരയും ചേർന്ന സൃഷ്ടിയല്ലെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ആദിയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികരെ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ജനിച്ചതിനു ശേഷവും നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാത്തതിന് ഒരാളെ കൊല്ലാനാവുക, കാലങ്ങളോളം കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാനാവുക? ഇനിയും എന്നാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക കറുപ്പ് ഒരു നിറം മാത്രമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത ഉടൽ നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലെന്നും? ഇനിയും എന്നാണ് പരിണാമത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചുപോയ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങൾക്ക് കൈവിട്ടു പോയ നിങ്ങളെ? ഇനിയും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഞങ്ങളുടെ കറുത്ത തൊലിക്കുള്ളിലെ കാണാതെ പോയ നിങ്ങളെ?
Black. Life on earth is not beautiful as imagined. He realizes as he lay thrashing under the knees that push him down into the earth. In that struggle, he says, "My body is splintering, my eyes darkness fills, in my mouth blood. I cannot breathe, I cannot breathe, I cannot. You think his black body is cast in wrought iron. You think the bones in his dark body, nerves, blood vessels, intestines, they are not the creation of bones and joints that you learned by seeing, listening, drawing in the anatomy class and from Da Vinci's sketchbook. Perhaps you believe in the beginning God made your ancestors alone, or else how can you kill one for not being like you before the gods were born and after their birth, and through the ages keep killing. Now, when will you realize that black is just a color, that your white body was not your choice? Now, when will you discover yourself stuck somewhere in the middle of evolution? The you that slipped out of your hands, somewhere in the middle of evolution, the you that slipped out of your hands. Now, when will you discover beneath our dark skin the missing you? Now, when will you discover beneath our dark skin the missing you? I can read an English version of one. It's written the poem. It's membrane. Over the eyes, a membrane. Not just eyes, over nose and face, arms and legs, covering them a membrane, thin, white. Not to worry the layers in skin. Not to worry the layers there in thin. Transparent, you love. Not to worry, the layer is thin. Transparent, you love. The voice doesn't raise, the love and the sound don't stay welded on the lips. You open your chest to the breeze that smells that climb to the past to reach you. You widen your eyes for them to envelop you as joy will. Yet, over your sight and smell and odor, this snow-like wheel slowly over your body slowly spreads the skin. But worry not, it is thin, transparent, your simple consolations. No bodies thrash about anymore, like fish on the ground for waters to swim in. No soul in the deeps boils in rage, you come listen. For truly, by fear laminated, we now lie made. For truly, by fear laminated, we now lie made up merely like the dead. Thank you. Many thanks, Sahitya. Our next poet is Dr. M. Priyavrat Singh. Dr. M. Priyavrat Singh Ji is an eminent Manipuri writer, scholar, and poet. He has more than 40 books to his credit. Many of his works have appeared in Manipuri literary journals and magazines. All India Radio Empire broadcast 73 of his radio plays, and around 20 plays have been staged. He is the recipient of Akashvani Award twice, 4 literary awards and 13 Best Script Awards. Currently, he is principal in Bhavan College in Bhavan. Dr. M. Priyavrat Singh.
dignitaries and luminaries, and galaxy of poets, the national treasures, my dear friends. A bit of Manipuri accent, and then it will be followed by two Manipuri poems translated into English, and about the translated poems are dedicated to this International Poetry Day. First, this Manipuri stanza. Igani hamlaba kunsi janada kalpana kaya bakabita. Lesin na may kay kangraba sumthang di magun susay tobe. Pasina sumakaya sumatpasu sumangkri. Sat laban ng gaya sumna in bagyasari kera manidismas. Sorry, I don't have Hindi translation. To a friend. Friend, I think you think I'm a poet. I do think I'm a poor poet. And a poor poet is the poorest of the poor. And I'm very proud of my poor. Yes, friend, I'm poor and wish to be so. There is much pleasure in being poor. So I choose to live in huts in rags. And I walk from huts to meet the poor. For a shared journey to the slow figures, I feel, I suffer, I hope, I do with them. Friend of my life, you are constructing marble houses, and I am building temples of earth. You are busy accumulating wealth, and I am watering human stupidity. You are producing and consuming, I am creating and preserving. You are all the time counting your money, and I am garnering truth with beauty. See, my dear, you are praying to God as God. I am worshipping words as divine. You are silencing and exploiting people, and I am wiping tears from humanity's eyes. You are blaming and cursing human fate, and I am singing and smiling to mankind. You are switching your guns to rule, and I am writing poetry for the good of others. You are looking at the top of your tower, and I am still looking at you. But friend, my dear, your full life of thoughtlessness and my history of helplessness shall one day meet in our graves. When night falls on our eternal sleep, oblivion will bury your skulls, time will never age my poetry, and living human memory will ever my heaven be. Second, next, once more. The mother of my kids, she said, pain in bed at hard life. The mother of my kids, she said, pain in bed at hard life. But she would never tell me why. And covering her forehead with her palms, she cursed God, poetry, and her faith, for even having made me a poor fool. She gave me no chance to answer her. Never was there a moment to say goodbye to her tears, and thus the greatest tragedy with me as man was, I could never let her know I love her. I went to the masses high and low, and inquired at all. I was a fool, and all seemed to say one significant yes. Yes, you are a sentimental fool because you love art. You are hopelessly poor because you are a writer. You are utterly helpless because you happen to be a poet. Poetry will never make money, and without money will go mad, and there, of course, you are. Am I a fool? I asked the clear sky. The fields and flowers were saying, no. The waters, the waves, and the winds were saying, not here. The rains and the rivers and the rainbows were saying, not even here. The blind and the beggars and the goddess who heads, never, never. And the wooded and the dying birds sang, not in vain. Make our blood your ink, and our dead your poem. Together, together, all the scatter, together, all the scatter, to bind all that is human. Today, towards this evening of my life, the eternal silence of my wife whispers to my ears alone, you are great, my dear,
never said goodbye to poetry. Once more, when silence is eloquent, poetry begins there and then. Thank you. Thanks a lot, Dr. Rabindra Singh ji. I now invite Shri Chandrabhan Khyal ji. Chandrabhan Khyal ji is a distinguished Urdu poet, journalist and literary critic. He has around 10 books to his credit. His poems have regularly been appeared in reputed literary journals, magazines. He served as the honorary secretary of World Urdu Conference, Vice Chairman of National Council for Promotion of Urdu Language, Member Governing Council of Delhi Urdu Academy, Haryana Academy, Urdu Advisory Board of the National Book Trust, etc. He has participated in international mushaira at Doha, Qatar, Jeddah, Saudi Arabia, and World Urdu Conference at Mauritius. He is the recipient of various awards and honors including Sahitya Akademi Award, Uttar Pradesh Urdu Academy Award, Delhi Urdu Academy Award, Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Samman, Tagore Literature Award, and Iqbal Samman. Shri Chandrabhan Khyal ji. ख़वातीन और हज़रात, नमस्कार, प्रणाम। सर साहब की इजाज़त हो तो हज़रात, ये गज़ल के छोटे कुछ अशार पेश करूँ और आखिर में एक छोटी सी नज़्म पेश करूँ। जी। दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, मेरी उंगली पकड़कर सितारे चले। दिल में जब जुस्तजू के शरारे चले, मेरी उंगली पकड़कर सितारे चले, और मैं न चलता तो रास्ते भी जाते, मैं न चलता तो रास्ते भी जाते कहाँ, मैं चला हूँ तभी ये नज़ारे चले। मैं न चलता तो रास्ते भी जाते कहाँ, मैं चला हूँ तभी ये नज़ारे चले, और हर कदम आज़माइश थी ऐसी कि हम, हर कदम आज़माइश थी ऐसी कि हम उम्र भर मुश्किलों के सहारे चले। आज़माइश थी ऐसी, हर कदम आज़माइश थी ऐसी कि हम उम्र भर मुश्किलों के सहारे चले। और राव साहब को एक शेर उनकी नज़र कर रहा हूँ। मुश्किलों का मेरे आगे न था रास्ता कोई भी, मेरे आगे न था रास्ता कोई भी, मेरे पीछे मगर लोग सारे चले। मेरे आगे न था रास्ता कोई भी, मेरे पीछे मगर लोग सारे चले। और कि सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या। ये रोशनी होती तो कोई बात, रोशनी होती तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या। रोशनी होती
तो कोई बात थी, इस अंधेरे घर में ढूंढा जाए क्या, और धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है। धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कुछ हलचल तो है। ये धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या। धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या। तो शेर देखिएगा कि खौफ और दहशत के इस बाजार, खौफ और दहशत के इस बाजार में क्या खरीदें और बेचा जाए क्या। खौफ और दहशत के इस बाजार में खौफ और क्या खरीदें और क्या खरीदें और बेचा जाए क्या। कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अपना उलझा जाए क्या। क्या बात है, क्या बात है। कुछ नतीजा ही नजर आता नहीं, मसलों से अपना उलझा जाए क्या। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, ख्याल देखें और देखा जाए। रात दिल्ली जैसे महानगर का रहते शायर को अगर वतन याद आ जाती है तो फिर ख्वाहिशें क्या यूँ कहिए कि आरज़ूएं क्या क्या शक्लें अख्तियार करती हैं। उसकी एक झलक इस गज़ल में बल्कि बुला कि नर्मदा का खुशनुमा साहिल, नर्मदा का खुशनुमा साहिल हो, विंध्याचल भी हो, नगमगर सन्नाटों की महफिल। क्या बात है, क्या नर्मदा का खुशनुमा साहिल हो, विंध्याचल भी हो, नगमगर सन्नाटों की महफिल हो। विंध्याचल भी हो कि बढ़ते जाएं दम बदम आगे कवाफिल फिक्र की। कवाफिल कहते हैं काफिले की जमा बहुवचन, कि बढ़ते जाएं दम बदम आगे कवाफिल फिक्र के, रह गुजर भी भीड़ में शामिल। बढ़ते जाएं दम बदम आगे कवाफिल फिक्र के, रह गुजर भी भीड़ में शामिल हो। विंध्याचल भी हो और लम्हा लम्हा मुतमईन हो, और हो आसूदा हाल। लम्हा लम्हा मुतमईन हो और हो आसूदा हाल, जिंदगी को जिंदगी हासिल हो। विंध्याचल क्या बात, क्या बात। लम्हा लम्हा मुतमईन हो और हो आसूदा हाल, जिंदगी को जिंदगी हासिल हो। विंध्याचल भी हो और जागता हो जंगलों में गुजरी सदियों का शऊर। जागता हो जंगलों में, जागता हो जंगलों में गुजरी सदियों का शऊर, और नजर इमरोज से गाफिल हो। विंध्याचल इमरोज कहते हैं, जागता हो जंगलों में गुजरी सदियों का शऊर, और नजर इमरोज से गाफिल हो। विंध्याचल भी हो जैसे जीने की कोई खुशी हो, और न मर जाने का गम। जीने की कोई खुशी हो और न मर जाने का गम, बस यही बेनाम एक मंजिल हो। जीने की कोई खुशी हो और न मर जाने का गम, बस यही बेनाम सी एक मंजिल हो। विंध्याचल भी हो और खामोशी का शोर, तन्हाई के जलवे लुत्फ है। कि खामोशी का शोर, तन्हाई के जलवे लुत्फ खैर, हर नजारा दीद के काबिल हो। हर नजारा दीद के काबिल हो,
विंध्याचल भी हो और आखिर में एक लिखिएगा कि दुख की देही बस्तियां हो, देही मतलब ग्रामीण, देही देहात, कि दुख की देही बस्तियां हों और न शहरे आरज़ू, दुख की देही बस्तियां हों और न शहरे आरज़ू, दूर हर दुनिया से मेरा दिल हो। दुख की देही बस्तियां हों और न शहरे आरज़ू, दूर हर दुनिया से मेरा दिल हो। नर्मदा का खुशनुमा साहिल, विंध्याचल भी हो नर्मदा सन्नाटो की। एक डेढ़ मिनट की शिकायत, इस नर्म का नाम है शिकायत। छोटी सी एक मिनट। कभी जो गुजरा उधर से तो देख लूंगा मैं, कभी जो गुजरा उधर से तो देख लूंगा मैं, तेरे मकान के गुरफों पे कितने पर्दे हैं। कभी जो गुजरा उधर से तो देख लूंगा मैं, तेरे मकान के गुरफों पे कितने पर्दे हैं। अभी तो ढूंढ रहा हूँ पनाह अपने लिए, कि शहर रोज चुरा लेता है लिबास मेरा। कभी जो गुजरा उधर से तो देख लूंगा मैं, तेरे मकान के गुरफों पे कितने पर्दे हैं। अभी तो ढूंढ रहा हूँ पनाह अपने लिए, कि शहर रोज चुरा लेता है लिबास मेरा। न मेरी रात बुझी है न दिन उदास मेरा, न मेरी रात बुझी है न दिन उदास मेरा, अगरचे अहले जहां को नहीं है पास मेरा। न मेरी रात बुझी है न दिन उदास मेरा, अगरचे अहले जहां को नहीं है पास मेरा। तमाम जिस्म किसी केस में रखे, न जाने कब से रवा हूँ मैं एक ही रह। तमाम जिस्म किसी ब्रीफ केस में रखे, न जाने कब से रवा हूँ मैं अपनी एक ही रह पर। ये रास्ता भी अजब है कि जैसे एक महवर, ये रास्ता भी अजब है कि जैसे एक महवर, न कोई मोड़ न मंजिल न कोई शोर शरार। ये रास्ता भी अजब है कि जैसे एक महवर, न कोई मोड़ न मंजिल न कोई शोर शरर। मुझे लिबास की चोरी का दुख नहीं, लेकिन मुझे लिबास की चोरी का दुख नहीं, लेकिन फरे हुए अस्त्र के मरबूस से शिकायत। Thanks a lot, Sahitya. Now I request Professor Kumut Sharmaji, Vice President, Sahitya Akademi, to make concluding remarks. Professor Sharmaji is an eminent Hindi writer. Presently, she is Professor, Department of Hindi, University of Delhi. She has 13 books on various subjects such as the media, women discourses and literature to her credit, besides many published articles in esteemed newspapers and literary journals. She has delivered more than 300 lectures at different Indian universities and important social forums of national and international level. She has been the member of Executive Council, Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya, Bhopal, Academic Council, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, High-Level Core Committee member of Prasar Bharati, member of Hindi Advisory Committee of Ministry of Civil Aviation, Government of India. She is the recipient of Sahitya Bhushan Samman, Bharatendu Harishchandra Puraskar, Damodar Chaturvedi Smriti Samman, Sahitya Shri Samman, and many others. Professor Kumut Sharmaji.
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मानव कौशिक जी, विख्यात कवि जिनको हमने आज सुना शुक्ल जी, सचिव श्री के निवास राव जी, और देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए सारे कवि जिन्होंने बहुत सुंदर कविताएं हमें सुनाई। आज विश्व कविता दिवस है। जो बात राष्ट्रपति जी ने रखी यहाँ पर, उसी से जोड़ के एक वाक्य और कहना चाहूँगी कि विश्व कविता दिवस है और ये कविता की जमीन के विस्तार का दिवस है। वो चाहे अनुवाद के माध्यम से हो या पूरे विश्व में कविता को लेकर के जो एक चेतना जगे, और ये दिवस है कि हम संवेदनाओं का एक असीमित विस्तार कर सकें विश्व कविता दिवस के माध्यम से। अजीब सी बात है कि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जो कि साहित्य चिंतन के क्षेत्र में अंतवाद का उद्घोषण बन करके आता है, जहाँ कहते हैं कहा जाता है कि साहित्य के खात्मे का युग है, कविता का अंत है, लेखक के अंत की भी घोषणा हो जाती है। और वही 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विश्व कविता दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में, संचार क्रांति के दौर में एक आशंका उठती है कि कंप्यूटर के युग में क्या कविता जीवित रहेगी। और कविता को लेकर के जब बात होती रही तो कविता को कोई प्रकाशन जल्दी छापना नहीं चाहता है। वो कहता है कि कविताएं बिकती नहीं है। मैं सही कह रही हूँ? और पाठक की कई बार शिकायत रहती है कि कविताएं बड़ी दुरू हो गई हैं, समझ में नहीं आती। और कवि की शिकायत रहती है कि कविताएं पढ़ी नहीं जा रही हैं। मैं लिखता तो हूँ, लोग पढ़ते नहीं। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर आप देखें कि जब एक कवि गोष्ठी होती है और कविताएं जब सुनाई जाती है तो श्रोता बहुत ध्यान से सुनते हैं और इसका आस्वादन लेते हैं। भले ही जो है आपको ये सुनाई दे, इधर ही किसी की कविता लिखी हुई है और एक सवाल है, पाठक की तरफ से सवाल है कि जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या मुसीबत में कविताएं होंगी हमारे साथ? आगे कवि लिखता है कि जिस तरह चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, कौन सी कविताएं मुसीबत में होंगी हमारे साथ? एक सवाल है। लेकिन मैंने कहा ना कि कविता की किताबों को लेकर की अलग बात है, लेकिन जब इस तरह की संगोष्ठियां होती है मंचों पर, आप देखिए मतलब छोटे छोटे से शहर में पता नहीं कितने काव्य मंच हैं, और जहाँ वहाँ पर कविता होती है तो और मुझे लगता है कि शायद वही आपके काव्यास्वादन की एक सुदीर्घ परंपरा है और वो इन सब माध्यमों से पोषित भी होती है और एक प्रक्रिया है, वो चलती है। और इस तरह का कवि सम्मेलन साहित्य अकादमी के सभागार में के साथ साथ गांव की चौपाल पर भी हो सकता है, वो कहीं जो है किसी की बैठक, सम्राट बैठक में भी हो सकता है, वो विश्वविद्यालय के किसी मैदान में हो सकता है, कहीं भी आप कविता का जमघट लगा सकते हैं। कविता में इतनी शक्ति है। और जिस तरह से आज इस सभागार में बहुत सारे रंग कविताओं के माध्यम से यहाँ बिखरे हैं, कई भाषाओं के यहाँ बिखरे हैं, और उससे एक बात तो बिल्कुल समझ में आई, सबकी समझ में आई होगी कि भले ही आप कितना कहें कि साहित्य पर दबाव है, समय का तनाव है, समय की मांग है, और साहित्य के साथ, कविता के साथ तन्मय भवन होने की स्थितियां नहीं है, लेकिन कितनी भी आपाधापी हो, कितनी भी आप महत्वाकांक्षाओं की दौड़ लगाएं और व्यस्त हो, लेकिन रात को जब आप घर जाते हैं तो दिन भर जो कुछ हुआ है आपके साथ, जो कुछ आपको मथता है, कहीं कुछ आपको बेचैन करता है, वो कहीं आपके दिमाग में, दिल पे असर करता है, और वहीं से जो भी कविता फूटती है। आज ही मैंने देखा कई सारे रंग थे, प्रेम के रंग भी थे, समय को अपने तरह से दर्ज किया गया था, जीवन की तमाम जटिलताओं को यहाँ व्यक्त किया गया, और बहुत सारे तनाव थे, दबाव थे, प्रेम के रंग थे, शांति का मुहावरा था उसमें। तो कवियों की चेतना के और चैतन्य के न जाने कितने बिंब जो है आज यहाँ कविताओं की अंतर वस्तु बनकर के हमारे सामने आए हैं, और विस्तार मिला है उसको। कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको की कविताएं सुनकर के ऐसा लगा कि कहीं भावनाओं के आवेग से कविता फूटती है, कहीं कल्पना
ये आवेग से फूटती है, कहीं सपनों की जमीन से वो आती है, कहीं वो यथार्थ से साक्षात्कार करते हुए आती है, आती जाती है कविता। और आते जाते कविता जो है बहुत कुछ बचाती है, कहीं माँ का चेहरा बचाती है, कहीं वो दोस्त की यादें बचाती है, कहीं वो संबंधों की उष्मा बचाती है, कहीं वो इंसानियत को बचाती है। और मुझे लगता है कविता इस तरह से जब संवेदनाओं को विस्तार देती है तो कविता की यही शक्ति है। और कविता दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस पर मैं कामना करती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि कविता की ये शक्ति, कविता की ये ताकत आप लोगों के माध्यम से हमेशा बची रहेगी। जब तक हमारे हृदय में एक स्पंदन है और जो स्पंदन है वो कुछ कहना चाहता है तो वो कविता बची रहेगी, आप कुछ कहते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अद्वैत की एक बहुत सुंदर कविता मुझे आज के संदर्भ में याद आ रही है। कुछ पंक्तियां अगर याद आ जाए। सुनो कवि, प्याजी आपको शायद याद होगी कविता। हाँ, सुनो कवि, भावनाएं खाद हैं केवल। सुनो कवि, भावनाएं खाद हैं केवल, उसको दबाकर जरा सा दबाकर वो जरा सा मन में रचने दो, जरा सा मन में रचने दो। अंधेरे अंधेरे तहों की पैड़ में पिघलने और बचने दो, रिसने और रचने दो, ताकि सार बनकर चेतना की धरा को ऊपर कर दे। ये नोट था और आप सब यहाँ पर आए, इतनी सुंदर कविताएं हमें सुनाई और पूरे सभागार को कामयाब बना दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श का बहुत बहुत धन्यवाद, चंडीगढ़ से आया। प्यार जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही सुचिंतित तरीके से अपना व्याख्यान भी दिया और हमें कविताएं भी सुनाई। और सचिव शेख राव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Inaugural session ends here. Now we will have a lunch break for an hour, and right at 2 o'clock we will get back to poetry again. The next session will be chaired by Dr. Sagari Chavraji. We will get back right at 2 o'clock. Thank you.